डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 11th क्लास की हॉर्नबिल से 4th लेसन लैंडस्केप ऑफ द सोल का अध्ययन करेंगे, जिसकी रचना नथैली टॉवरॉय ने की है। इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा कि उन्होंने एशियन पेंटिंग और चाइनीज़ पेंटिंग की तुलनात्मक प्रस्तुति दी, जिसमें उन्होंने बताया कि जो चाइनीज़ पेंटिंग होती है उसमें पेंटर इस तरह की रिक्तता छोड़ देता है जिससे कि दर्शक अपने अनुसार उस पेंटिंग को पूरा करे, जबकि एशियन पेंटिंग जो होती है वह पूर्णता लिए हुए होती है। वे विभिन्न उदाहरणों को देती हैं जिनमें वे सम्राट जुआनजांग के द्वारा वू दाओजी के हाथों बनाई गई पेंटिंग का वर्णन करती हैं, और वे एक ऐसी कहानी सुनाती हैं जिसमें एक लोहार जो पेंटिंग के प्रति बिल्कुल भी जानकार नहीं है, एक विलक्षण चित्र अपनी प्रेमिका की खातिर बनाता है। तो इस दूसरे पार्ट में हम आगे का जो डिस्क्रिप्शन है उसे देखेंगे। A classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view as would a Western figurative painting, whereas the European painter wants you to borrow his eyes and look at a particular landscape exactly as he saw it from a specific angle. The Chinese painter does not choose a single viewpoint. His landscape is not a real one, and you can either it from any point then travel in it. The artist creates a path for your eyes to travel up and down, then back again in a leisurely movements. This is even more true in the case of the horizontal scroll, in which the action of slowly opening one section of the painting, then rolling it up to move on to the other, adds a dimension of time which is unknown in any other form of painting. It also requires the active participation of the viewer, who decides at what pace he will travel through the painting. A participation which is physical as well as mental. The Chinese painter does not want you to borrow his eyes. He wants you to enter his mind. The landscape is an inner one, a spiritual and conceptual space. क्या लिखा? एक शास्त्रीय चीनी प्राकृतिक दृश्य किसी वास्तविक दृश्य की नकल करने के लिए नहीं बनाया जाता है, जैसा कि पाश्चात्य
आकृति चित्रों में किया जाता है। जब कोई यूरोपीय चित्रकार चाहता है कि आप उसकी आंखें उधार लें और किसी प्राकृतिक चित्र को किसी खास दृष्टिकोण से ठीक उसी रूप में देखें जिससे उसने देखा था, वहीं चीनी चित्रकार केवल एक दृष्टिकोण नहीं चुनता है, उसका दृश्य वास्तविक नहीं है और आप इसमें कहीं से भी प्रवेश कर सकते हैं। फिर आराम से वापस आने के लिए रास्ता तैयार करता है। कागज के क्षैतिज पृष्ठ टुकड़े के मामले में यह और भी अधिक सच है, जिसमें चित्र के एक भाग को धीरे धीरे खोलने और फिर दूसरी तक पहुंचने के लिए ऊपर से लपेट देने से समय का आयाम और जुड़ जाता है, जो चित्रकला के अन्य रूपों में अभी तक नहीं जाना गया है। इसमें दर्शक की सक्रिय भागीदारी आवश्यक होती है, जो यह तय करता है कि चित्र में होकर वह किस गति से यात्रा करेगा। एक ऐसी सहभागिता जो शारीरिक भी होती है और मानसिक भी होती है। चीनी चित्रकार नहीं चाहता कि आप उसकी आंखें उधार लें, वह चाहता है कि आप उसके मन में प्रवेश करें। दृश्य आंतरिक होता है, यह एक आध्यात्मिक और अवधारणात्मक आयाम होता है। मतलब यह है कि दृश्य को आप अपने विचारों और भावों के अनुसार देख सकते हैं। आगे लिखती हैं, दिस concept is expressed in Sanskrit literally mountain water, which used together represent the word landscape more than two elements of an image. These represent two complementary poles reflecting the diverse view of the universe. The mountain is young, reaching vertically towards heaven, stable, warm and dry in the sun, while the water is yin, horizontal and resting on the earth, flood moist and cool. The interaction of yin, the receptive feminine aspect of universal energy, and its counterpart yang, active and masculine, is of course a fundamental notion of Taoism. What is often overlooked is an essential third element, the middle void, where their interaction takes place. This can be compared with the yogic practice of pranayam, breathe in, rest and breathe out. The suspension of breath is the void where meditation occurs. The middle void is essential. Nothing can happen without it. Hence the importance of the white unpainted space in Chinese landscape. क्या लिखा कि
इस विचार को सेंसुई के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ पर्वत जल होता है, जिसका साथ साथ प्रयोग दृश्य शब्द का निरूपण करता है। मतलब यह कि पर्वत और जल दोनों के मिलने से दृश्य बनता है। किसी चित्र के दो तत्वों से अधिक यह ब्रह्मांड के विषय में दाओ के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करते हुए दो अनुपूरक ध्रुवों को निरूपित करते हैं। पर्वत यांग है ऊर्ध्वाधर दिशा में स्वर्ग की ओर पहुँचते हुए, स्थिर गर्म और धूप में सूखा हुआ, जबकि जल एन बाई आई एन है क्षैतिज पृथ्वी पर टिका हुआ तरल और शीतल, शाश्वत ऊर्जा का भ्रमशील और स्त्रियोचित पक्ष तथा इसके पूरक सक्रिय और पुरुषोचित पक्ष के बीच की पारस्परिक क्रिया वास्तव में दाओ के दर्शन का आधारभूत विचार है, जिसे आमतौर पर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। वह है बेहद ज़रूरी तीसरा तत्व। जहाँ दो तत्वों की पारस्परिक क्रिया होती है, वहीं बीच का रिक्त स्थान, जिसकी तुलना योग क्रिया के प्राणायाम से की जा सकती है। सांस लो, सांस को रोको, सांस बाहर निकालो। सांस को रोकना ही वह अतिरिक्त रिक्त स्थान है जहाँ ध्यान घटित होता है। बीच की रिक्तता आवश्यक है, इसके बिना कुछ भी घटित नहीं होता। इसलिए चीनी दृश्य में श्वेत अचित्रित स्थान का महत्व होता है। आगे लिखती हैं, दिस इज आल्सो वेयर मैन फाइंड्स ए फंडामेंटल रोल in that space between heaven and earth. He becomes the conduit of communication between both poles of the universe. His presence is essential, even if it's only suggested for being lost or oppressed by the lofty peaks. He is in Francis Chang's wonderful expression, the eye of the landscape. तो क्या कहा यहाँ भी आदमी को एक आधारभूत भूमिका मिलती है। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतराल अर्थात रिक्त स्थान में ब्रह्मांड के दोनों ध्रुवों के बीच वह संप्रेषण का साधन बनता है। उसकी उपस्थिति आवश्यक है, चाहे यह उपस्थिति केवल इंगित की जाती है। ऊंची चोटियों द्वारा खोए या सताए जाने से दूर वह फ्रांसिस चैंग के सुंदर शब्दों में दृश्य की आंखें हैं। आगे वो वृंदा सूरी की 28 अगस्त 2005 में हिंदुस्तान टाइम्स में छपे एक आर्टिकल को लेती हैं। वो आर्टिकल था गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट। तो इसमें देखें, वैन फ्रेंच पेंटर जीन ड्यूफेट
mounted the concept of art, but in the 1940s, the art of the untrained visionary was of minority interest. From its almost wild beginnings, outsider art has gradually become the fastest growing area of interest in contemporary art internationally. तो क्या लिखा, जब फ्रांसीसी चित्रकार जीन डफेट ने सन 1940 के दशक में अनगढ़ कला की अवधारणा को सुझाया, तो अप्रशिक्षित कल्पनाशील चिंतक की कला में रुचि रखने वाले अल्पसंख्यक थे। अपनी लगभग छिपी हुई शुरुआत से लेकर आउटसाइडर आर्ट आधुनिक कला जगत में धीरे धीरे रुचि को सर्वाधिक तेज गति से बढ़ाता हुआ क्षेत्र बन गई है। This genre is described as the art of those who have no right to be artists, as they have received no formal training, yet show talent and artistic insight. Their works are a stimulating contrast to a lot of mainstream offsprings. क्या लिखा कि इस शैली का वर्णन उन लोगों की कला के रूप में किया जाता है जिनका कलाकार बनने का कोई अधिकार नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने कोई औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया हुआ है। फिर भी जो प्रतिभा और कलात्मक अंतर्दृष्टि दिखलाते हैं, उनकी कृतियां बहुत सारा मुख्यधारा की प्रस्तुतियों की विचारोत्तेजक रूप से विरोधाभासी हैं। आगे लिखती हैं, अराउंड द टाइम Dufect was proponent his concept in India, and untutored genius was creating paradise. Years ago, the little patch of jungle that the began clearing to make himself a garden sculpted with stone and recycled material is known to the world today as the Rock Garden at चंडीगढ़। तो क्या लिखा, जिस समय डुफेक्ट अपनी अवधारणा को लोगों के सामने विचार के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे, उस समय भारत में एक अप्रशिक्षित प्रतिभा स्वर्ग की रचना कर रही थी। वर्षों पहले जंगल का छोटा सा क्षेत्र, जिसे उन्होंने पत्थर और पुनः प्रयोग में लिए जाने वाले पदार्थों से बगीचा बनाने के लिए साफ करना शुरू किया था, उसे आज दुनिया चंडीगढ़ में रॉक गार्डन के नाम से जानती है।
Its 80-year-old creator director Nek Chand is now hailed as India's biggest contributor to outsider art. The 50th issue spring 2005 of Rovision, a UK waste magazine pioneer, is outsider art publications features Nek Chand and his rock garden sculpture Women by the Waterfall on its anniversary issues कॉर्नर। इसके 80 वर्षीय रचनाकार निर्देशक नेक चंद को आउटसाइडर आर्ट के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा योगदान देने वाला माना जाता है। आउटसाइडर आर्ट प्रकाशन में अग्रणी इंग्लैंड की पत्रिका रोविजन के 50वें अंक स्प्रिंग 2005 में नेक चंद और उनकी रॉक गार्डन की मूर्तियां जलप्रपात के पास महिलाएं को इसके वार्षिक संस्करण के मुख्य पृष्ठ पर छापा गया है। आगे द नेशन ऑफ आर्ट और आर्ट वाज ऑफ वर्क्स दैट वर इन देयर raw state as regards culture and artistic influence anything and everything from a tin to a sink to a broken down car could be material for a work of art, something Nek Chand has taken to dizzying highlights, recognizing his art as an outstanding testimony of the difference a single man can make when he lives his dream. The Swiss Commission for UNESCO will be honoring him by way of European exposition of his works. The 5-month interactive show Realm of Nek Chand beginning October will be held at leading museums in Switzerland, Belgium, France and Italy. The biggest reward is walking through the garden and seeing people enjoy my creation, Nek Chand says. तो क्या लिखा? सांस्कृतिक और कलात्मक प्रभाव के संबंध में अपरिपक्व कला का विचार ऐसी रचनाओं या कृतियों से भी था जो अपनी अपरिपक्व अवस्था में थी। कोई भी चीज या हर चीज, डिब्बे से लेकर सिंक या खराब कार तक कलाकृति की सामग्री हो सकती है। ऐसी चीज जिसे नेक चंद आश्चर्यजनक ऊंचाई तक ले गए हैं, उसकी कला को इस बात का शानदार प्रमाण स्वीकार करते हुए कि जब कोई आदमी अपने सपने को जीता है तो कितना बदलाव ला सकता है। यूनेस्को के लिए स्विस आयोग उनकी कृतियों को यूरोप में प्रदर्शित करके उनका सम्मान करेगा। अक्टूबर में शुरू होने वाला और 5 महीने तक चलने वाला संवाद युक्त प्रदर्शन रील्म ऑफ नेक चंद स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस तथा इटली के प्रमुख संग्रहालयों में होगा। नेक चंद कहते हैं
सबसे बड़ा पुरस्कार बगीचे में घूमना और लोगों को मेरी कृतियों का आनंद लेते देखना है। तो इस तरह से यह लेसन कंप्लीट हो